जिंदगी का फॉर्मूला विद माइंड पावर वासिम। वेलकम टू जिंदगी का फॉर्मूला और मेरे साथ है माइंड पावर एक्सपर्ट वसीम, हु इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर। इनके वर्कशॉप के बारे में आपको पता भी है एंड यू नो हाउ यू कैन कनेक्ट अस। www.facebook.com/mindpowerwasim, that's our Facebook page. Besides that, we have our website www.mindpowerwasim.com. Hey Wasim, welcome to the show. After 1 week, we are back with जिंदगी का फॉर्मूला। जिंदगी का फॉर्मूला हम आए दिन फॉर्मूला देते रहते हैं, लेकिन स्ट्रेस स्पेशली मानसिक तनाव के बारे में हम लोग आए दिन बात करते रहते हैं या फिर सुनते रहते हैं। इवन वी आर एट अ रेस्टोरेंट, एट अ हैंग आउट प्लेस, जो आता है ना ईव्सड्रॉप करके पता चल जाता है कि इनको मानसिक तनाव है या फिर सुनने को मिलता है। आपको क्या कहना है इसके बारे में? अगर आपको मानसिक तनाव है तो यही दर्शाता है कि यू आर स्टिल अलाइव। मानसिक तनाव सिर्फ जिंदा लोगों को ही होता है। द पर्सन हु इज नॉट अलाइव और येट टू बी बॉर्न, दे विल नॉट बी हैविंग मेंटल स्ट्रेस। लाइफ इज अबाउट चैलेंजेस एंड व्हेन यू आर अनेबल टू हैंडल दोज चैलेंजेस जी, एंड आप जब उस चक्रव्यूह में आप फंस जाते हो एंड यू आर नॉट able to find out the solution, that is when you kind of become stress. और जब आपको ये तनाव जो है आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, then it takes a toll on your health. You look at diabetes, you look at hypertension, you look at diseases connected with heart. These are all some way or the other are being affected by stress. हम कहते ज़रूर है ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस है, बट दे आर मोर और लेस, इवन फिजियोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर्स आल्सो डू से कि आप स्ट्रेस ना ले ज़्यादा। आपकी जो लाइफस्टाइल है दैट इज़ अ चॉइस। तो आपकी लाइफस्टाइल, योर वे ऑफ बीइंग इज गोइंग टू अफेक्ट योर health. But then again, there are two kinds of stress. One is a good stress, one is a bad stress. We need stress just like we need problems, because without stress, आपको अगर stress होगा ही नहीं तो आप कभी alert, awake नहीं रहोगे। तो there is a need for stress too, to be able to perform, to be able to feel that Java jolt आपको चाहिए। पर अगर वो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाएगा then that would take a toll on your life. But this is a little, I don't think so our viewers would love to accept it कि stress is good, क्योंकि सब लोगों को एक smooth, happy go lucky एक ज़िंदगी खुशनुमा चाहिए। देखिए प्रॉब्लम वहीं पे होता है कि आप सिर्फ you just want to look at the happier side of life, happy, chill, nice, cool. I say life happens in two ways. One, एक होता है कि जैसा आप चाहते हो, so you have the desired goal or desired result that you want to have, और एक होता है जो आप डिज़ायर नहीं करता है पर फिर भी होता है, that is the consequences, the events of life that happen undesired. So life happens both ways. When it happens the way you desire, आप जैसे सोचते हो, चाहते हो, जब होता है हम बहुत खुश होते हैं, we happy, we become happy, natural. पर जब जैसा हम चाहते नहीं होता, that is when our skills are being tested. That is when we need the skills, we need the techniques, we need the tools to be able to relieve the stress, to be able to let go of the stress. Stress is not a problem. Stress is an effect. आपके शरीर में, आपके न्यूरोलॉजी में, आपके ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, उसके वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। So stress is not a problem. Stress is an alarm. It is a signal that something is out of balance and you need to take care of it. Okay. Yeah. So how do you go about taking care of that? There are 6 ways. There are 6 definite formulas through which you can actually get rid of stress, you can manage stress, you can relieve stress. Okay. Yeah. 6 definite formulas. Correct. जिसके जरिए we can cope or handle stress. Correct. And come out positive and Correct. emerge as a better person, which of course you would love to know about it. Right. And उसके बारे में आप one by one अगर formula share करें। First one is the technique that I would like to call the hands-free technique. Hands-free technique. Okay, hands-free मोबाइल पे तो हमने सुना है, but this is a new thing for us. Hands-free technique. Yeah. Okay. So metaphorically speaking, tension is connected with the metaphor of hands. जो हमारी मानसिक हाथ जो है,
शारीरिक हाथ नहीं, मानसिक हाथ के साथ, मेंटल हैंड्स. मेंटल हैंड्स के साथ कनेक्टेड है स्ट्रेस. Okay. जो कोई भी स्ट्रेस का इशू लेके मेरे पास आता है, मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ जो मैं अभी आपको भी पूछूंगा, नवीश को भी पूछूंगा. ओके. क्या आपको स्ट्रेस होता है, या आप स्ट्रेस लेते हो, या कोई आपको स्ट्रेस देता है? ओके. Yeah. So I ask this question to anyone and everyone who Okay. come up to me with the issue of mental stress or tension. हाँ. तो वो थोड़ी देर के लिए वो लोग they become shocked and अच्छा. surprised. Then they look at me and they go, I've never thought about it. I said, if you have never thought about it, this is the time to think about it. Think about it now as I ask you कि आपको स्ट्रेस होता है, या आप स्ट्रेस लेते हो, या कोई आपको स्ट्रेस देता है? तो 90% लोग बोलते हैं कि मैं स्ट्रेस लेता हूँ या लेती हूँ. वी टेक स्ट्रेस. तो मैं क्या कर सकता हूँ So इसमें? why do they take it then? Now, then I ask them this question also, why do you take it? तो बोलते हैं कि अगर मैं स्ट्रेस नहीं लूंगी तो बाकी का क्या होगा? तो आप जब बाकी लोगों के बारे में आप सोच रहे हो, Okay. फाइन, यू आर बीइंग अ नाइस ह्यूमन बीइंग, बट यू आर ऑल्सो योर प्रायोरिटी. यू शुड नॉट फॉरगेट इट. आपको ये भी नहीं भूलना है. आप एक एग्जांपल मैं देता हूँ. फर्ज कीजिए हम 4 लोग, मैं, नबीश और 2 दोस्त, हम एक मिलते हैं और खाने के लिए बैठते हैं. बर्तन हम लोग we eat, so we use the utensils. खाना खाने के बाद सिर्फ नबीश चारों लोगों का बर्तन धोता है, तो that will be tiring for you. But if each and every one of us they take the responsibility of doing that, I think then nobody would be under stress. तो वो मांजना इतना बड़ा इशू नहीं होगा. तो ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि they take the problem of other people, they own it, they get frustrated, and then they come to me. They did not require to come to me in the first place. उनको ज़रूरत नहीं था किसी के पास जाने के लिए. अगर वो ये सवाल अपने आप को पूछते हैं कि क्या मैं टेंशन लेता हूँ या कोई मुझे टेंशन देता है. फिर दूसरे कैटेगरी के लोग जो बोलते कि मुझे लोग टेंशन देते हैं. एक चीज़ मैं आपको देता हूँ, आप लोगे या नहीं लोगे, दैट इज अगेन योर चॉइस. तो मैं आपको पूछता, आपको टेंशन देते हैं तो वाई डू यू टेक इट? वाई डू यू टेक इट? तब वो बोलते हैं कि अगर मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा, अगर मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? अगर आप हमेशा ही लेते रहेंगे, बाकी लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है वो कभी सीख ही नहीं पाएंगे जिंदगी में. आप अगर कल्चरली देखें, हमारे कंट्री में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा होता है कि वी आर एक फैमिली मेंबर होता है जो सब कुछ अपने कंधे पे ले लेता है. व्हाट अबाउट द रेस्ट? पॉइंट. हाँ, हम बोलते हैं कि वो निकम्मा हो चुका है, निठल्ला हो चुका है. आपने उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने दिया ही नहीं. आप दो, उनको गिरने दो, संभलने दो. यू लेट देम डू देयर ओन वर्क. तभी इंडिपेंडेंस सही में डेवलप होगा अंदर से. ठीक है. सो अब अगर ये सवाल पूछोगे कि क्या आप टेंशन लेते हो, कोई आपको देता है या आपको होता है, आपको पता चलेगा कि 90% ऑफ द केसेस में आप टेंशन लेते हो. आपको टेंशन होता नहीं है. टेंशन आपको बहुत कम होता है, और जितना आपको असल में होता है आप आराम से हैंडल कर पाओगे. सो ये जो पहला टेक्निक है जो मैंने बोला कि हैंड्स फ्री, आप अपने आप को ये अवेयरनेस में लाओ. बिकम अवेयर ऑफ द फैक्ट वेदर यू आर टेकिंग टेंशन और टेंशन इज रियली हैपनिंग टू यू. जब मैं ये सवाल पूछता हूँ, लोग अपने आप को पूछते हैं, वो हंसने लगते हैं, बोलते हैं हाँ मैं सभी का टेंशन ले लेती हूँ, फिर मैं थक जाती हूँ, देन आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, मैं उनके ऊपर चिल्लाती हूँ. सो व्हाई डू यू हैव टू डू दैट? व्हाई डू यू हैव टू क्रिएट दैट सागा? आपको जरूरत ही नहीं था. That was not unwanted only. Absolutely, that was unwanted stress. True. You are creating stress for yourself. बिल्कुल. You are pulling it to yourself. जो अपने हाथ को आराम दीजिए, हैंड्स फ्री बनिए. इसलिए मैंने बोला गो हैंड्स फ्री. आप अपने आप को हैंड्स फ्री कीजिए. तो that was the first technique. First technique. And Yeah. what's the immediate second technique? The immediate second technique is the management. Management. Yeah. So आप हमारा एक हम we live in the culture of problem fix. Immediate solution. Immediate solution हमको चाहिए. तो आपको अगर स्ट्रेस है, आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है, तो इमीडिएटली आपको, मुझे अभी डिस्ट्रेस होना है, मुझे बहुत जल्दी स्ट्रेस खत्म करना है, वो बात भी आप भूल जाओ. When you are having stress, then if you try to manage stress, that would again create stress for you.
That will बिकॉज be योर like माइंड more इज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो, टायर्ड हो, जी जी और आप फिर सीखने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे टायर्डनेस को भगाया जाए। भाई पहले आप रिलैक्स हो लो, उसके बाद सीखो कैसे टायर्डनेस को भगाया जाए। तो आप if you are having stress, don't try to manage stress at that very point in time. I know it sounds very complicated, हाँ. but it is not complicated. So basic जो आपका न्यूरोबायोलॉजी, So this is not the instant thing. ये No. आपको cultivate करना होगा एक habit, एक Yes. healthy life forming lifestyle habit आपको develop करना है. correct, correct. Okay, okay. So okay. that is the second thing. Don't try to manage stress when you are under stress. Just go ahead and help your body, help your brain revive itself. अगर वो revive हो जाता है, इसको पता है कि कैसे stress को relieve करना है. Okay. That leads us to the third thing, कि हमको state, हमारा जो state of mind है, जी उसको हमें सही करना है। okay. स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज आप अगर देखो कि स्ट्रेस इज कनेक्टेड विद प्रॉब्लम्स, अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स इन अ प्रॉब्लम स्टेट। एक प्रॉब्लमेटिक मानसिक अवस्था में एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। जब आपकी मानसिक अवस्था चेंज हो जाती है, एक ही प्रॉब्लम दूसरा दिखाई देता है। थोड़ी देर पहले जब आप से टायर्ड थे, आप गुस्से में थे, तब आप या आप डरे समय हुए थे, तो आपको वही प्रॉब्लम बहुत बड़ा नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद आपका स्ट्रेस, आपका फर्ज कीजिए कि आपका मेंटल जो स्टेट है, मानसिक अवस्था, वो चेंज हो गया। आपने किसी दोस्त के साथ बात किया, टीवी में कुछ देखा, किसी ने आपको इंस्पायरिंग कुछ बोल दिया, एनीवे आपका जो मानसिक अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड चेंजेस। उसके बाद वही प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं दिखता तब आपको। जब आप हैप्पी स्टेट में होते हो, कुछ खराब भी होता है तो आप बोलते कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करो, मानसिक अवस्था को चेंज करो। तो मानसिक अवस्था चेंज करने के जो नेक्स्ट टेक्निक है, दैट इज टू लाफ। Are you serious? I mean, like to laugh at your problem, या फिर to laugh at your stress? या to laugh at your problems, yes. Okay. LOL मतलब. Exactly. So laugh at your problems. When I look at people, I just stop and think. I mean, what is wrong with people? What Okay. is wrong with them? मैं लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ और खुद भी ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ कि प्लीज़ डोंट डाई व्हेन यू आर अलाइव। जब आप जिंदा हो तब मरो मत। Please don't die when you are alive. When you're Very still true. alive, Very don't die. true. Please don't die when you're still alive. I would like to give a round of applause for this. Actually, a Thank you very so much. good one. Thank you. Thank you. So please don't die when you're still alive. So आप हंसो अपने ऊपर, आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर आप हंसो, क्योंकि देखिए आपकी ज़िंदगी 4 दिन की है। आप आज हो कल नहीं हो। मैंने एक एपिसोड में बोला था that you need to study death. You need to go and visit people who have died. True. अगर आप डेथ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आप जो अभी में हो, दिस इज ऑल यू हैव। द नाउ इज ऑल यू हैव। उसके अगले वक्त, अगले मोमेंट में क्या होने वाला है, हमको कुछ भी पता नहीं। यस, हम अपने आप को बचा के चल सकते हैं। वी कैन समहाउ मैनेज एंड वी कैन मेक गुड चॉइसेस एंड देन वी कैन ट्राई मेकिंग अ बेटर प्लान। वी शुड डू दैट। बट फिर भी आप यू कैन बी नेवर 100% श्योर कि आप नेक्स्ट पल में आपके साथ बहुत बुरा नहीं हो सकता है। तो जिंदगी आज है, कल नहीं है। तो आपको ये रियलाइजेशन लेके चलना है कि आपका लाइफ जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ इट इज डिजायर्ड, पार्ट ऑफ इट इज अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस। सो डोंट टेक इट टू सीरियसली। इफ यू स्टार्ट टू लाफ एट योर प्रॉब्लम्स, अगर आप अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर हंसना शुरू करोगे, जी, आपके जो प्रॉब्लम्स है दे विल न्यूरोकेमिकली चेंज। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मेरा एक दोस्त, बहुत खासा दोस्त, उसको इशू हुआ था विथ ड्राइविंग। किसी कारणवश उसको ही हैड डेवलप्ड द फियर ऑफ ड्राइविंग। Okay. ड्राइविंग का फियर उसको हो गया और मेरे पास आया तो मुझे बोला कि मुझे बहुत पैनिक होता है यार, मुझे गाड़ी में बैठते ही मुझे बहुत डर लगने लगता है, तो मैं चला नहीं पाता, तो आई एम हैविंग दिस फोबिया। एंड आई फॉर अ सेकंड स्टॉप्ड हिम एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई आस्क्ड, अच्छा एक बात बताओ, कैन यू विजुअलाइज? सर यार यू कैन विजुअलाइज, एवरीबॉडी कैन विजुअलाइज, आप भी विजुअलाइज कर सकते हो, वी ऑल डू। तो मैंने बताया कि आप जब ड्राइव करते हो पैनिक स्टेट में, आप बोलते हो ना कि आपको डर लगता है गाड़ी चलाते हुए, तो उस वक्त आप कैसे दिखोगे? तो थोड़ी देर के लिए वो रुका, वो ही पॉज्ड
And then he started to laugh. He said, "Oh my God, I look funny. Okay. I look really funny. मैं डर डर के गाड़ी चला रहा हूँ, मैं वैसा ही दिखूंगा. I think that's how I would look, and I think I'm pretty sure I look that way." तब मैंने बोला हाँ. Then he started to laugh more. यार मैं बहुत अजीब दिख रहा हूँ. He started to laugh and laugh and laugh. I said, "Okay, fine." So उसके बाद we carried on with other things. Next morning, I think day after, he came and he reported to me. He said, "यार तूने क्या किया उस दिन?" I got up on the car. Initially, I was a bit skeptical. मुझे डर लग रहा था. फिर मैं बैठा. फिर मुझे डर नहीं लगा. I started to laugh rather. I said, किस बात पर you started to laugh? He said, मुझे वो सीन याद आ गया कि जब तुमने पूछा था कि मैं डरते हुए जब गाड़ी चलाऊंगा कैसा दिखूंगा, तो वो याद आ गया. तो I started to laugh. As I started to laugh, पता नहीं मुझे मेरा डर कहीं भाग गया. तो here comes the neurological explanation. So the moment he laughed, he had happy hormones released in his brains. जैसे serotonin, dopamine, endomorphin, अच्छे hormones आपके brains में release होना शुरू हुआ. So your neurochemical base started to change. His neurochemical base started to change the moment he started to laugh. जैसे वो हंसने लगा, अगर either you can be happy or you can be sad. आप happy और fearful कभी नहीं हो सकते. True. आप happy भी हो, आप डर भी रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. आप grateful भी हो, आपको गुस्सा भी आ रहा नहीं हो सकता. Either you are grateful or you are angry. तो जैसे वो happy हो गया, he was unable to access the state of fear, panic. वो नहीं कर पा रहा था. तो वो कैसे हुआ? The moment he started to laugh at himself. तो आप जब when you start to laugh at your problems, you neurochemically change. As you change, your visuals, आप जैसे देखते हो पूरे situation को, the scenario starts to change in your mind. आप उसको देखते अलग से हो, आप उसके बारे में बात अलग से करते हो, आप अलग से फील करते हो, तो आपका naturally आपका action अलग होता है. So वो visualization is also very very important. Do not take yourself too seriously. Laugh at yourself. Serious होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. For example, last, okay, coming back, we have to quickly wrap up with 2 more formulas are still left. We talked about the rest 4. So other 2 formulas. Other 2 formulas. The next one is the time. Time. People said people don't have time. I don't have time. Fast-paced life. हाँ, fast-paced life. Time नहीं है यार. Time is running out. Time is rushing out. Time is running out. I'm running short of time. I have no time. Time is very less. ये है deadline. मुझे इस short time में करना है. Yeah. Everybody is running the neurology in fast time pattern. जब आप इतना अब ये बार-बार repeat करते हो कि मेरे पास time नहीं है, मेरे पास time नहीं है, मेरे पास time नहीं है, you hear it. आप सुनते हो. जैसे आप सुनते हो, immediately आपका brain एक signal produce करता है to ask your heart to breathe faster. Palpitation faster करने के लिए बोलता है. बिल्कुल. अगर मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे सब कुछ जल्दी करना है, तो I need to pump more blood into my head. Yeah, I need more circulation in the brain. जब आप इतना ज़्यादा उसको पंप करोगे, तो your heart starts to get tired. आप उसको ओवरवर्क करा देते हो. तो हमारे जो फास्ट पेस लाइफ है, आज देखिए हार्ट अटैक जो पहले था, इश्यूज रिलेटेड विथ योर हार्ट, वो बहुत ज़्यादा है, पहले इतना नहीं था, बिकॉज ऑफ द फास्ट पेस लाइफ. सो लाइफ वैसे का वैसे ही है. लाइफ हैज़ नॉट चेंज्ड. वी हैव चेंज्ड इट. वी हैव चेंज्ड द ओरिएंटेशन ऑफ टाइम. इमोशंस आर कनेक्टेड विथ टाइम. हम लोगों ने क्या किया है, हम ये बोलते हम अपने आप को थका रहे हैं. हम बोल रहे कि टाइम नहीं है, और हम ज़्यादा गलतियां करते हैं. वी आर नॉट एट रेस्ट. आप अगर देखोगे कि ADHD का इशू जो है, रेस्टलेसनेस का इशू जो है, वो पहले इतना नहीं था. लोग इतने रेस्टलेस नहीं थे. पीपल हैव बिकम मोर रेस्टलेस नाउ बिकॉज दे हैव स्टार्टेड टू टेल देमसेल्व्स दैट मेरे पास वक्त नहीं है. आप छोटा सा एक प्रैक्टिस शुरू कीजिए. आप यू स्टार्ट टू इन्फॉर्म योरसेल्फ, आई हैव लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत वक्त है. I have lot of time. And see, if you think properly, you will understand time is a mechanism, time is an emotion, and time, the mental time is independent of this time. जब आप एक अच्छी वक्त, आप when you are spending a good time, time flies. आप एक पार्टी में हो, दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, आप देखोगे टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है आपको. लेकिन आप बुरा वक्त देखोगे और क्रॉल करता है, धीरे चलता है. आप लाइन में खड़े हो कुछ लेने के लिए, तो आप देखोगे कि टाइम पास नहीं होता है.
सो टाइम इज कनेक्टेड विथ योर पर्सपेक्टिव, आप कैसे सोचते हो एक चीज को, ठीक है। तो आप जब बोलते हो कि मेरे पास टाइम है, आई हैव इनफ टाइम, तो इमीडिएटली आपका क्या होता है, आपका जो हार्ट बीट है वो हम बोलते हैं HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, वो प्रॉपर हो जाता है, रिदमिक हो जाता है। जैसे आपका हार्ट रेट रिदमिक हो जाता है, सो अकॉर्डिंगली आपका ब्लड पंप होता है ब्रेन में, तो आपके जो अच्छे हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, आपका ब्रेन वेव जो है वो प्रॉपर हो जाता है। देन इंस्टेड ऑफ हैविंग अ वेरी टनल विजन, फियरफुल विजन, आपका जो बेस ब्रेन है, जो हम बोलते हैं कि एनिमलिस्टिक ब्रेन, फाइट और फ्लाइट, वहाँ से हटके यू कम टू द सोफिस्टिकेटेड पार्ट, आप रिलैक्स्ड हो। आप जब रिलैक्स रहते हो आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है, आप क्लियरली सोच पाते हो। जब आप डर में हो तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देता है कि मुझे बचाना है अभी अपने आप को, आपको क्लियरली कुछ दिखाई नहीं देता। तो व्हेन यू टेल योरसेल्फ आई हैव इनफ टाइम, आई हैव लॉट ऑफ टाइम, देन यू माइट हैव 1 आवर, आप कोई आर्ग्यू भी कर सकता है सच्ची में मेरे पास वक्त नहीं है। अब देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑन द वॉच। फर्ज कीजिए कि नबीश के पास और मेरे पास 1 घंटा ही है कुछ करने के लिए। नबीश बोलता है मेरे पास टाइम नहीं यार, मुझे जल्दी जल्दी करना है, ही विल बी मोर प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स। मगर मैं अगर बोलता हूँ कोई बात नहीं, लंबी गहरी सांस लो, तुम्हारे पास 1 घंटा है, आराम से करो, तुम्हारे पास 1 घंटा है, आराम से करो, तुम्हारे पास बहुत वक्त है। ये बोलते ही क्या होगा कि मेरा जो न्यूरोबायोलॉजी है इट विल सेटल। सो आई नॉट बी रशिंग इनटू थिंग्स, आई लुक एट थिंग्स मोर क्लियरली, आई मेक लेसर मिस्टेक्स, आई बी मोर प्रिसाइज, और आई एंजॉय द प्रोसेस। मुझे प्रोसेस एंजॉय होगा, क्योंकि आप देखोगे कि आप क्रिकेट आप देख लो, एग्जांपल ले लो, अल्ट्रा मोशन, अगर किसी चीज को आपको अच्छे से देखना है, यू हैव टू रन इट इन अल्ट्रा मोशन, स्लो टाइम पैटर्न। जब आप स्लोली एक चीज को स्लो मोशन में देखते हो, आपको डिटेल में सब दिखाई देता है। अगर आप अपनी जिंदगी को डिटेल में देख पाते हो ना, तब आपको हर चीज का मजा आएगा। लेकिन अगर आप रश में रहोगे तो आपको किसी चीज का मजा नहीं आएगा। यू विल जस्ट पास थ्रू थिंग्स, you will not enjoy anything. But if you slow things down, अब अगर slow कर दोगे तो you will see everything, you will hear everything, you will smell, taste, you will feel, and that is all about life. So forget fast-paced life and enjoy time. You have time. You have that mental. Yes, we all have time, you have to say that your state of mind needs to say that. Just inform yourself. Good amount of time. Yeah. And you need to enjoy that time and Correct. experience the time. Correct. Okay, I'm very sure they have understood, and I'm still very sure I'm also understanding what you have said. So what's the last formula? The last formula is all about the understanding. Oh, acha. Understanding. So oftentimes what I have noticed, Navish, solution is the problem. The set solution that we make up in our heads is the problem, is the very problem that stops us from arriving at the real solution. अच्छा. ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हर वक्त मैं अपना जो की है, मेरा की गुम हो गया, मेरे गाड़ी का की गुम हो गया। Okay. तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अपने वाइफ के साथ फाइट कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के साथ फाइट कर रहा हूँ। तो फाइनली कुछ देर बाद मुझे की कहीं और मिलता है, तो फिर मैं बोलता अरे यार उनके ऊपर ऐसे ही गुस्सा कर दिया मैंने। तो आप अगर गहराई से सोचोगे आपको पता चलेगा, आप हमेशा अपने की को उस मैट्रेस के नीचे रखते थे ना, तो आज भी आप उसी की को मैट्रेस के नीचे ही ढूंढोगे। एंड दिस टाइम अराउंड यू हैव फिक्स्ड योर माइंड, आपको पता है कि सोल्यूशन अगर होना है मैट्रेस के नीचे होना है, आप की कहीं और नहीं रख सकते। पर थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि की आपने गाड़ी में छोड़ दिया था। तो योर सेट सोल्यूशन इन योर माइंड कि आपने सोचा कि वहीं पे होना होगा, दैट वेरी आइडिया, दैट वेरी सोल्यूशन हैज ब्लॉक्ड योर माइंड फ्रॉम एनालाइजिंग, थिंकिंग, रिकॉलिंग। आपने रखा तो आपको पता है आपने रखा हुआ है, तो बट यू आर नॉट एक्सेसिंग इट कॉन्शियसली, इट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड कि आपने वहां पे रखा है। अगर आपने अपने हाथ से किया है तो आपको पता है, पर आपको स्टिल पता नहीं है बिकॉज यू अनकॉन्शियस ऑफ इट। क्योंकि आप कॉन्शियस हो सिर्फ एक चीज के बारे में कि अगर मैंने रखा है तो मैंने मैट्रेस के नीचे रखा है, तो सोल्यूशन इज द प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है कि रादर देन सिंपली अराइविंग एट द सोल्यूशन, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। पीपल हार्डली स्पेंड time trying to understand the problem. Try to understand the problem, spend time with the problem, understand the problem, and do not fix a set solution from beforehand. Thank you so very much.
I enjoyed this episode thoroughly, but yes, I have to conclude. We are coming up with more episodes, so what we can do, Wasim, I think we can ask our viewers to send in their feedback, suggestions के साथ the topics they want to discuss, right? Correct. Wasim is very much available in Facebook as well, so आप उनको आपका जो problems है या फिर topic you want to discuss, please feel free to inbox him. He'll definitely take care of it, and then we'll come up and design that episode only and specially for you. And also we have our site, that is www.mindpowerwasim.com, and हमारा जो YouTube channel है, please go there, hit the like button, share and subscribe. And that's it for this episode. We'll come up with more your topic in upcoming episodes. Thanks for being with us. Keep watching Zindagi Ka Formula.